Hello my dear students, we'll discuss today the Newton's third law of motion. In the previous videos and classes we had discussed Newton's first law of motion and the second law of motion. We had discussed the concept of balanced and unbalanced forces, and we'll discuss today the Newton's third law of motion. Newton's third law of motion is nothing but it is the action and reaction law. It is the action and reaction law. This is the action and reaction law. इस नोट बोर्ड के ऊपर मैं हाथ से मारता हूं तो ये हो गया मेरा फोर्स ऑफ एक्शन. तो आई एम पुटिंग अ फोर्स ऑफ एक्शन ऑन द बोर्ड, और बोर्ड मेरे हाथ में रिटर्न में जो फोर्स लगा रहा है वो है रिएक्शन. सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नॉन एज रिएक्शन. For every action there is an equal and opposite force known as reaction. For every action there is an equal and opposite force known as reaction. तो इसीलिए इसको बोला एक्शन एंड रिएक्शन लॉ. बोर्ड के ऊपर मैं ये फोर्स लगाता हूँ, दिस इज माय फोर्स ऑफ एक्शन, और बोर्ड मेरे हाथ पे जो अपोजिट में फोर्स लगाता है दिस इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन. मेरा एक्शन है वो बोर्ड पे लग रहा है और बोर्ड का रिएक्शन है मेरे हाथ पे लग रहा है. दैट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट bodies on two different bodies. मेरे एक्शन का डायरेक्शन ये है और रिएक्शन का डायरेक्शन ये है, तो दैट मीन्स इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन. अगर मैं बोर्ड पे हल्का सा मारता हूँ तो मेरे हाथ पे हल्की चोट होगी, थोड़ा जोर से मारता हूँ तो मेरे हाथ पे जोर की चोट होगी, और जोर से मारता हूँ तो और जोर की चोट होगी, और जोर से मारता हूँ मैं नहीं मारूंगा क्योंकि मेरा हाथ ही टूट जाएगा. सो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनकी ताकत बराबर होगी. सो एक्शन and reaction forces are equal in magnitude. So this is the concept of Newton's third law of motion. Now this is what the basic concept of the Newton's third law of motion, and we'll discuss now its applications of the law. Applications of law. पहला है walking. You are able to walk. This is because of Newton's third law of motion. हम वॉक इस तरह से करते हैं तो ग्राउंड के ऊपर हम फोर्स ऑफ एक्शन लगाते हैं इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ग्राउंड हमें देता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट इज नोन एज रिएक्शन, and because of that we are able to walk. So you are able to walk,
because of Newton's third law of motion. So have a morning walk and see the results of Newton's third law of motion. Have the evening walk and see the results of Newton's third law of motion. Okay. Rebouncing of ball. Rebouncing of ball. एक बॉल है और बॉल को आप फ्लोर पे मारते हो तो बाउंस होती है, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि हमने बॉल को ग्राउंड पे मारा. दिस इज द फोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द बॉल ऑन द ग्राउंड एंड द ग्राउंड प्रोवाइड्स द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नॉन एज रिएक्शन. रिएक्शन के कारण ऊपर, तो बॉल का ग्राउंड पे एक्शन और ग्राउंड का बॉल के ऊपर रिएक्शन. बिकॉज ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स अ बॉल rebounces on the floor. Okay. Next है working of rocket. Working of rocket. Rocket works on the Newton's third law of motion. तो for example ये हमारा रॉकेट है और रॉकेट के अंदर ये कॉम्पैक्ट फ्यूल है. When this compact fuel burns in the rocket, it produces the large volume of gases that comes in downward direction. तो रॉकेट के फ्यूल के जलने से जो गैसेस निकलती है और वो गैसेस ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाती है. दिस इज द फोर्स ऑफ एक्शन. और ग्राउंड है रॉकेट के ऊपर लगाता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नोन एज रिएक्शन. Because of that, the reaction moves in upward direction. When the fuel in the rocket, it is burnt, it produces the large volume of gases in downward direction. The gases which are coming downward with the pressure, they put a force of action on the ground. The ground provides the equal and opposite force known as reaction on the rocket. So rocket moves upward. So this is because a rocket works on the Newton's third law of motion. हम और एग्जाम्पल्स लें. recoiling of gun or rifle. When a bullet is fired, तो जो बुलेट निकलेगी दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द गन ऑन द बुलेट. दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द गन ऑन द बुलेट. द बुलेट गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और जो बुलेट बाहर निकलता है वो रिएक्शनरी फोर्स लगाएगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो ए गन रिकॉल्स. आप देखा करो कभी भी गन चलाते तो था वो पीछे की ओर आती है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे आप पेट्रोल पंप पे देखो, पेट्रोल पंप पे क्या देखेंगे बेटा कि जिससे वो तेल डालते हैं वो काला सा पाइप होता है, उसको कहेंगे हॉस. जो तेल डालने वाले हैं वो उसको लगा के उसको होल्ड करते हैं, क्योंकि जो भी तेल बाहर निकलता है प्रेशर के साथ में वो उस हॉस के ऊपर, पाइप के ऊपर एक रिएक्शनरी फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो नीचे गिर सकता है. इसीलिए जो पेट्रोल पंप वाले जब तेल डालते हैं तो उस पाइप को होल्ड करते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. आप देखें कि जो फायरमैन है जब उनको आग बुझानी होती है तो वो पानी के प्रेशर से यूँ डालते हैं आग पे, लेकिन वो यूँ पीछे झटके मारता है.
तो दे हैव टू स्ट्रगल, फायरमैन को स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज जो पानी बाहर आ रहा है, इजेक्ट हो रहा है फ्रॉम द पाइप्स विद अ प्रेशर, it puts a reactionary force in a backward direction, so a fireman have to struggle to hold the pipe. आप कुछ और एग्जांपल्स दें कि जैसे when we jump out of the boat, पाइप के ऊपर एक और एग्जांपल लें, आप गार्डन है और गार्डन के अंदर आपने पाइप को हल्का सा फोल्ड करके उसके गोल गोल बना के सर्कल बना के रख दिया है, ठीक है, और शाम को पानी आया, जैसे आप टूटी ऑन करोगे तो जैसे पानी निकलेगा वो पाइप जो इतना छोटा घेरा बना रखा वो खुलेगा यूँ, एकदम से जैसे पानी आप छोड़ेंगे वो एकदम से खुलेगा। रीजन बीइंग कि पाइप से जो पानी बाहर निकलेगा वो क्या करेगा, वो रिएक्शनरी फोर्स लगाएगा जिससे वो पाइप झटके खाएगा और दूर दूर होएगा। और एग्जांपल्स लें आप, जैसे आप एक बोट के अंदर है और नदी के आप किनारे आ गए हैं, जब आप बोट से जंप करते हैं तो बोट पीछे की ओर जाती है, तो बोट के ऊपर हमने जंप किया तो बोट के ऊपर हमने लगाया फोर्स ऑफ एक्शन, तो एक्शन के कारण बोट तो गई कहाँ पर, नाव के पानी के अंदर, and we come out of the boat on the bank of the river, that is because of the force of reaction. हमने बोट से जंप किया, हमने बोट से जंप किया तो जंप करते टाइम हम यूं उछलेंगे तो हमारा फोर्स ऑफ एक्शन लगेगा बोट के ऊपर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और बोट हमारी बॉडी को प्रोवाइड करेगी इक्वल अपोजिट फोर्स नॉन एज रिएक्शन। बिकॉज ऑफ द रिएक्शन we come out of the boat on the bank of the river. आप देखते हैं कि नदी के अंदर जो नाव पकड़ने वाले हैं, जो मछलियां पकड़ने वाले हैं, वो नाव को लेके जाते हैं तो एक लकड़ी का बड़ा सा डंडा रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि नदी के किनारे अपनी बोट्स को एंकर करके रखते हैं। एंकरिंग का मतलब है कि बोट को उस वहाँ पर होल्ड करना, दैट इज़ व्हाट एंकरिंग। तो बोट को वहाँ से खोल दी और बोट को नदी के अंदर ले जाने के लिए वो लकड़ी के एक डंडे से इस तरह से उसको पुश करेंगे। सो ए फिशरमैन और ए बोटमैन pushes the bank of the river with a wooden plank to take his boat into the river. So when a fisherman or a boatman pushes the bank of the river with a wooden plank, with the help of wooden plank, लकड़ी के लट से वो नदी के किनारे पे लगाता है फोर्स ऑफ एक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन, और नदी का किनारा है वो प्रोवाइड करता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नॉन एज रिएक्शन। रिएक्शन के कारण बोट है वो अंदर नदी में चली जाएगी। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप देखें कि दिवाली के ऊपर एक वो फिरकी होती है, चक्कर जिसको बोलते हैं, और फिरकी को हम फ्लोर पे रख के उसको जलाते हैं, उसमें आग निकलती है यूँ, तो फिरकी घूमेगी अपोजिट डायरेक्शन में। जो फिरकी नहीं होती है, चक्कर जिसको बोलते हैं, उसको लगा के छोड़ देते हैं तो वो घूमती है, तो आग निकलेगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। आप एक रस्सी लो, धागा लो, और धागे को उधर दीवार में लगा दो किसी हुक में, धागे को यूं खींच लो, धागे के अंदर एक स्ट्रॉ डाल दो, एक गुब्बारे में हवा भरो और स्ट्रॉ से चिपका दो। मतलब हमने एक रस्सी खींच ली, ऐसे हमने रस्सी खींच ली, ठीक है, और इसका एक एंड दीवार के उधर लगा दिया, दूसरा एंड दीवार के यूं पकड़ेंगे, और इसके अंदर हम एक स्ट्रॉ डाल देंगे, एक गुब्बारा लिया, गुब्बारे को इस पे चिपका देंगे,
और उस गुब्बारे पे हमने इस साइड पिन मारी तो हवा तो निकलेगी इस डायरेक्शन में और गुब्बारा भागेगा अपोजिट डायरेक्शन में. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. दो ट्रॉलीज हैं और दो ट्रॉली के ऊपर दो बच्चे हैं. इधर एक बच्चा है, उसने एक बैग लिया और उस बच्चे को यूं देगा तो वो बच्चा उसको होल्ड करेगा. तो ये वाली ट्रॉली भी दूर जाएगी और वो वाली ट्रॉली भी दूर जाएगी. हमने बैग उस बच्चे को दिया, बच्चे पे लग जाएगा फोर्स ऑफ एक्शन और मेरी वाली ट्रॉली पे लगेगा रिएक्शन. मैं रिएक्शन का पीछे जाऊंगा. सो दिस ऑल आर द केसेस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Newton's third law of motion, it is the law of action and reaction. My dear students, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आएगा जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज व्हाट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज बिफोर कॉलिजन इक्वल्स द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर कॉलिजन. न्यूटन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम कंबाइन करके कोऑर्डिनेट करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे वर्किंग ऑफ द रॉकेट, recoiling of the gun, we can explain them by the Newton's third law of motion, and they are also the well-known examples of law of conservation of momentum, and this we'll discuss in the next class in the topic conservation of momentum. Thank you.